हाँ जी नैक्सट 5B ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, x² + y² = r² ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x² y² 2gh + 2fy + c ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ = 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, x - h² y - k² = r², ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਵੀ 0 0 ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨ 'ਤੇ, ਬਟ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ -g - f, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, g² + f² - ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਰੂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ। x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉੱਪਰ, ਨੀਚੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ y ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ -g ਤੇ -f ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ g² + f² - c > 0 ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਸਰਕਲ ਰੀਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ = 0 ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਦੈਨ ਸਰਕਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 0। ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ x ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, y ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ 225/4 ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 100 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਐਡ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਬਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਕਲ ਦੀ, x - h² y - k² = r²। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ h ਤੇ k ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਨਿਊ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੇ 7 ਪਾਸ ਕਰਾਇਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। 6 ਪਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 3rd ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆਂਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 3, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3 ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ 23/12 ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਐਫ ਤੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ।
सारियां वैल्यूज़ बेटा अपने कोल निकलियांगा सर्कल की इक्वेशन दे विच पुट कर दिओ जिहड़ी 1 नंबर ते आ तां तुहाडे कोल की आ इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जूगी। हुण की कड्ढना सी आपां सर्कल दा सेंटर कड्ढना सी, वो की हुंदा सी अपने कोल माइनस जी ते माइनस एफ ते जी तुसीं कढ चुके हो, माइनस दे 2 ते 3 आए सी, एक माइनस फिर तो अगे लगाओगे तो तुहाडे कोले प्लस 2 3 आ जाणगे। रेडियस की हुंदा सी अपने कोल जी एफ दा स्केयर माइनस सी तां रेडियस निकलिया आवेगा। ठीक है, कुल मिला के बेटा इहदे विच तुहाडे जिहड़े आर्टिकल वाले फार्मूले आ उही यूज़ कीते होए आ। नैक्सट जी 4th एग्जाम्पल आ वो बिल्कुल ये वांगू आ, वो तुसीं खुद सॉल्व करोगे। नैक्सट देखो 5th, शो दैट 4 पॉइंट दिस एंड दिस आर कॉन्साइकल। कॉन्साइकल का मतलब हुंदा बेटा जिहड़े सेम डिस्टेंस दे जां फिर सेम वैल्यू वाले पॉइंट हुंदे आ। ठीक है, तो सब तो पहला तुहानूं की आ ये तुसीं शो करना गा। ठीक है, कॉन्साइकल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखोगे, ये चारे दे चारे जो तुसीं पॉइंट पास करवाओगे तो तुहाडे कोले उस तरह इक्वेशनस निकलिया आउणगीਆਂ जिवें आपां पहलां पास करवा के आए हैं। ठीक है, उन्हां दे विचों जदों तुसीं पॉइंट पास करवाते इक्वेशनस आ गईਆਂ तुहाडे कोल, उदों बाद तुसीं एफ ते जी दीयां वैल्यूज़ कड्ढणीਆਂ सी तां तुसीं सब तो पहलां उस तरह 23/12 वाला फार्मूला लगा के एफ ते जी दीयां वैल्यूज़ कड्ढ लिओ। ठीक है, एफ ते जी दीयां वैल्यूज़ निकलियांगा अपने कोल की आ सर्कल की इक्वेशन निकल आऊगी। ठीक है, 3 पॉइंटां तो तुसीं की आ सर्कल की इक्वेशन कड्ढती, क्योंकि बेटा आपां 3 पॉइंट ही पास आउट करवाने हुंदे आ। तुसीं की देखो इधर एक मिनट, हाँ जी इक्वेशन सीगी अपने कोल आ 3 पॉइंट पास करवाए तुसीं कॉन्साइकल दे विच आ वाले 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंटां नूं पास करवा के तुसीं सेम डिटो इस इक्वेशन वांगू सॉल्व कर लिया, एफ ते जी दीयां वैल्यूज़ निकल आउणगीਆਂ, तुहाडे कोल की है सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। उस सर्कल की इक्वेशन दे विचों तुसीं 9 ते -6 पास आउट करवाउणे आ। ठीक है, जे तुहाडा 9 ते 6 माइनस दे पास आउट करवा के आंसर 0 आ गया दैन तां तुहाडे पॉइंट की होणगे कॉन्साइकल होणगे। जे 4th पॉइंट पास करवा के आंसर 0 नहीं आउंदा गा दैन आपां कहांगे दिस पॉइंट आर नॉट कॉन्साइकल। क्लीयर, पॉइंट तुहानूं कॉन्साइकल की इक्वेशन 4 दिते होणगे, 3 पॉइंट तुसीं पास करवाउणे आ, चौथा पॉइंट तुसीं सर्कल की इक्वेशन चों पास करवाउणा गा। अगर आंसर 0 आ गया तो दैन अपना की आ क्वेश्चन की आ कॉन्साइकल आ। ठीक है, तो अपना आंसर 0 आ रहा गा। क्लीयर, नैक्सट की है तुसीं फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल रेडियस 5 गिवन आ पास करदा 2 पॉइंट्स दे विचों। सब तो पहला तो आपां जदों भी सर्कल की इक्वेशन लिखते सी पॉइंट अपने कोल 3 होने चाहिए सी। ठीक है, तो तीजा पॉइंट तुसीं इहदे सर्कल वाला ले लोगे, सेंटर वाला किहड़ा हुंदा सी अपने कोल -g ते -f। 2 पॉइंट ऑलरेडी अपने कोल हैगे आ, 3 पॉइंट बन गए बेटा अपने कोल। ये तिन्ने दे तिन्ने पॉइंट सब तो पहला 4 2 पास करवाओ, फिर -3 ते 1 पास करवाओ। ठीक है, इन्हां दोने पॉइंट्स नूं पास करवा के सॉल्व करके तुहाडे कोल 2 इक्वेशनस रेडी हो जाणगीਆਂ। फिर तुसीं -g ते -f पास करवाउणा गा। ठीक है, इस तो तुहानूं एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर इक्वेशनस नूं जदों तुसीं सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल g दीयां 2 वैल्यूज़ निकल आउणगीਆਂ। जदों तुसीं फिर की करना गा जी दीयां ये दोनों वैल्यूज़ तुसीं पास आउट करवाउणीਆਂ ने। एक बार जी नूं 0 पुट करोगे, एक बार जी नूं की पुट करोगे तुसीं -1। ठीक है, तो ये दोनों जो पॉइंट पास करवाओगे तुहाडे कोल एफ दीयां वैल्यूज़ निकल आउणगीਆਂ, एफ दीयां वैल्यूज़ भी आ गईਆਂ बेटा, जी दीयां भी आ गईਆਂ। ये दोनों वैल्यूज़ की है तुसीं इक्वेशन 2 दे विचों पास करवा देणीਆਂ ने, तो तुहाडे कोल सी दीयां वैल्यूज़ आ जाणगीਆਂ। 2 आ रहीਆਂ ने बेटा तुहाडे कोल हरेक वैल्यू दे 2 आ रहीਆਂ ने, सी दीयां भी 2, जी दीयां भी 2 ते एफ दीयां भी 2। तो इक्वेशन जिहड़ी अपने कोल सर्कल की बनूगी वो भी कितनियां बनणगीਆਂ 2 बनणगीਆਂ। क्लीयर, तो ये दोनों इक्वेशनस अपने कोल सर्कल दियां आ जाणगीਆਂ। नैक्सट फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल जिहड़ी पास करदी है तुहाडे कोल 2 पॉइंट्स दे विचों एंड कहंदे जिहड़ी ये लाई कर रही है किसी लाइन दे नाल। तो सब तो पहला सर्कल की इक्वेशन लिखियो उस तरह 2 ते -2 3 ते 4 पास आउट करवा दो। थर्ड पॉइंट आपां नूं गिवन नहीं गा, बट थर्ड दे विच की लिखिया सीगा जिहड़ी तुहाडी लाइन सीगी वो की है सेंटर चों पास कर रही सी। सेंटर किहड़ा हुंदा सी अपने कोल -g -f, तो वो लाइन चों पास करवा के तुहाडे कोल की है 4th इक्वेशन आ जाएगी। क्लीयर,
हुण बेटा उस तरह अपने कोल 3 इक्वेशनस आ गईयां, तिन्नां नूं सॉल्व कर लिओ। उस तरह एफ ते जी दीयां वैल्यूज निकल आउणगीਆਂ, इक्वेशन च पुट कर दिओ, सर्कल की इक्वेशन अपने कोल फाइंड आउट हो जाएगी। क्लीयर। नैक्सट की है, तुहानूं लाइन दित्ती हुई आ, शो करना गा तुसीं जिहड़ी ये लाइन आ वो टच करेगी सर्कल नूं, सर्कल आपां नूं दित्ता गा एंड दिस इक्वेशन एट द पॉइंट वेयर द टू सर्कल टच ईच अदर। कहंदे सब तो पहला तुसीं शो करना लाइन टच करदी है इस सर्कल नूं एंड इस वाली टर्म नूं, जिथे की है कहंदे थोड़े वो पॉइंट भी पता करो जिथे ये दोने सर्कल की है टच कर रहे ने। तो सब तो पहला 2 सर्कल दिते हुए सी, दोने लिख दो। लाइन की इक्वेशन दी हुई सी थोनू, वो लिख दो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन तो तुसी एक वैल्यू कड्डी y की -x+2। ये एक बार तुसी 1 इक्वेशन च पुट करनी है, ये y वाली वैल्यू, इनू सॉल्व करोगे, फिर यही y वाली वैल्यू तुसी 2 इक्वेशन च पुट करोगे तो सॉल्व करोगे। फस्ट देखो जो आप y की वैल्यू फस्ट इक्वेशन च पुट की, थोड़ी पूरी टर्म x दे विच बन गई। ठीक है, इत्थों तुहाडा फार्मूला बनी जाता गा a² - 2ab + b का स्क्वेयर = 0। ये की हुंदा अपने कोल x - a मतलब x - 1 का स्क्वेयर = 0। जदों इनू =0 दे रख के सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोले 1 रूट आऊगा। ठीक है, तो अपने कोले की आ पॉइंट 1 आ गया। ये 1 पॉइंट जिहड़ी थोड़ी y वाली इक्वेशन सीगी उहदे च पुट कर दो, उत्थों तुहानूं y की वैल्यू मिल जूगी। सेम पॉइंट निकलिआ 1 हुण तुसीं यही इक्वेशन सी जिहड़ी -x+2 वाली 2 दे विचों पास कराओ, फिर थोड़ी इक्वेशन x च बन जूगी। उस तरह x ते y दीयां वैल्यूज आ जाणगीਆਂ। दोने वैल्यूज की अपने कोल सेम आ रही ने। 1 आ रही सी, पहली लाइन में सॉल्व किया उदों भी 1 आया, जो दूजी बार सॉल्व किया उदों भी 1 आया। मीनस कि अपने जोड़े सर्कल आ वो किहड़े पॉइंट ते टच कर गए 1 ते। क्लीयर। नैक्सट तुसी इक्वेशन पता करनी है सर्कल की जिहदा सेंटर गिवन आ ते टच करदा गा लाइन। तो सब तो पहले देखो आप लाइन बनाई, उन्होंने टच करदा सर्कल बनाया। ठीक है, लाइन गिवन सी आपां नूं वो लिखती। हुण जदों तुसीं इहदा रेडियस पता करना हुंदा गा उदों बेटा इहदा नवां फार्मूला हुंदा गा, तां तुसीं की करना हुंदा गा, एक्स वाले एलीमेंट की एक्स वाले नाल मल्टीप्लाई करोगे -4 की 1 नाल। ठीक है, इत्थे 1 लिखिया नहीं क्योंकि -4 की जे 1 नाल कर दोगे तो -4 ही आऊगा। सिमिलरली तुसीं की करना गा 2 की y वाले एलीमेंट y के अगे -1, 2 की -1 नाल करोगे -2। उस तो बाद तुसीं लिखनी हुंदी है कॉन्सटेंट टर्म माइनस पा के, वो की है अपने कोले 3। क्लीयर। नीचे तुसीं बेटा रूट च स्केयर करना हुंदा गा एक्स के एलीमेंट का तो वाई का। एक्स ते वाई का एलीमेंट की है अपने कोल 1 स्केयर कर दोगे, रेडियस निकलिया है अपने कोल। तो हुण देखो आपां नूं 4 एंड 2 पॉइंट गिवन सी, तो अपनी जिहड़ी सर्कल वाली इक्वेशन हुंदी सी x - h का स्केयर y - k का स्केयर, आ तां माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, y - 2 का स्केयर = रेडियस का स्केयर। सॉल्व कर दोगे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली बेटा सेम ये दा अगला सम थोड़ा फॉर वट वैल्यू सी विल लाइन दिस टेजेंट टू द सर्कल दिस। तो मीनस के थोनू लाइन दी हुई आ जिहड़ी कि दूसरी लाइन के उपर टेजेंट आ, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर = 5। मीनस के एक्स के विचों माइनस हो रहा 0, जे का स्केयर करोगे तो कल्ली एक्स का स्केयर ही आऊगा। मीनस के आपां नूं की दिता होया सेंटर इहदा 0 0, रेडियस किन्ना गा √5। तो सब तो पहला थोनू y गिवन सी ये वाली ओकेशन दे विच, तो y नूं दूसरी साइड लै गए, माइनस दी y आ गई, आ ओकेशन निकल आई अपने कोल। ठीक है, तो हुण अपने कोल एक तो यह प्लेन की इक्वेशन आ गई, एक ये पॉइंट आ गए। आपां पिछे की कीता सी, हुणी मैं तुहानूं उपर वाली एग्जाम्पल च करा के आई सीगी, एक्स नाल एक्स वाले पॉइंट की मल्टीप्लाई 2 नाल 0 की, माइनस y नाल 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस आपां लिखना सी कॉन्सटेंट टर्म, नीचे एक्स का स्केयर y वाले एलीमेंट का स्केयर, एक्स का एलीमेंट 2 y का -1। तो इत्थों जो तुसीं सॉल्व किया रेडियस निकलिया है तुहाडा √5। ठीक है, √5 के इक्वल लिखांगे आपां नूं रेडियस गिवन सीगा, उहदे च रेडियस गिवन नहीं सी, आपां कड्ढिया सीगा आ फार्मूला लगा के। इस दे विच तुसीं ये फार्मूले नूं रेडियस के इक्वल लिख सकते हो क्योंकि रेडियस तुहानूं गिवन आ 5 सीगा ना बेटा रेडियस। तो जो √5 का स्केयर करोगे, स्केयर नाल रूट कैंसल हो गए, 5 ही आऊगा अपने को रेडियस। क्लीयर। तो आपां की इस टर्म नूं सॉल्व किया, √5 नूं एज इट रखियो,
रूट 5 ਦੀ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਪੂਰਾ 5 ਆ ਜਾਊਗਾ c ਦਾ ਮੋਡ। c ਦਾ ਮੋਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ +-5। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ +-5। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ।